Yes. Okay, good morning, everybody. So excited and so much. I was like waiting for this. Yes, Rekha ma'am, you're saying something. Yes. Very warm good morning to Honorable Vice Chancellor Sir, my esteemed faculty colleague, and dear audience. Today, we all have gathered here to attend the online guest lectures. Well, student, such guest lectures are very important because it enables the students in enriching the latest update regarding opportunities for higher studies and job as well as the need of the industry. Amity University Patna conducting such online session on various topic on regular basis so that more and more students should be benefited and become capable in taking crucial decision of his or her life. Well, we are delighted and privileged that today, one of the enriched, knowledgeable personality, Professor Kunal Shrivastava, trainer by choice, having 16 years of experience, has trained, taught, and coached over 15,000 students and professionals through various assignments with academic, corporate, and government circle. He is a certified trainer by Department of Personnel and Training, Ministry of HRD, and certified associate NLP practitioner. Presently, he is associated with Amity University Patna in capacity of an assistant professor, where he teaches communication skill in all the streams at the university and also contribute significantly in training students in their preparation for their on-campus and off-campus placement interview, CV preparation, group discussion, etc. So I welcome you, Professor Srivastava, and I request you, please take over the session. Thank you so very much, Dr. Rekha. Let's begin. I'm really, really excited. I was really excited for this session and finally it's happening. So I'm overjoyed and over elated for this one. So let's begin. Now, there are few things to be like sorted out in the first instance. The first thing is, I'll be my camera is, yeah. So I'll be using bilingual instruction mode, and I'll be using Hindi and English, a mix of both. The first thing. Second thing is, we'll be taking up question and answers. That will be in the end of the session. But if time permitting, then we can have those small breaks of Q&As, question answers के small breaks हम लोग बीच-बीच में लेंगे. इसमें कि कोई भी valid questions होगा वो आप लोग पूछ सकते हैं through chat. You won't be able to speak by default, but you will be able to write your questions and queries, and your if you want to discuss something, you can always write them. And if Rekha ma'am is our moderator of the day, if you find something really valuable or it should be taken up, so we both will be taking those questions and we'll try to discuss those points. So let's start. Once again, welcome all. So this webinar, the name of the webinar is the topic which we have chosen is communication in business. Now, there are two aspects of it. One is theoretical part of all the things and the other is practical aspect of it. So we'll try to mix both the aspects, and as the slides progress, I'll be using slides, and as the slides will progress, we'll getting to know what are the important elements of our communication skills, communication per se, and we'll get to know much more than that, right? So कम्युनिकेशन के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे, प्लस उसका एप्लीकेशन क्या है हमारे रियल लाइफ में, बिकॉज जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, व्हाटएवर सब्जेक्ट वी स्टडी, until and unless there is a practical aspect of it, until and unless it can be used for some benefit, तब तक किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता. So with this note, I would like to start. Let me share my presentation. That is, if you can just have a look at, but the slides are very easy to understand. I haven't used words and I haven't used those bullet points जो हम लोग normally presentation वगैरह में use करते हैं.
So it's all using pictograms, photographs, and very easy to understand. और अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो तो it's okay. So because ये हमने ऐसा मॉड्यूल डिजाइन किया है जिसमें कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. You can feel what exactly is being tried to. Okay. Before we move ahead, can you all type in the chat box if you are able to see the slides? Are you able to see the slide? Just Y for yes and N for no. Please type in Yes, the sir, chat it is box. visible. Is it visible to all? Yes. Okay. So I can see. Yes. So we can move ahead. So I am putting it on. Okay. So communication in business. So business, right? The word business, which is again a very technical, is a jargon. ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड समझ में आता है, बट मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ. बिजनेस ये वो एक्टिविटी है, इट्स एन एक्टिविटी वेयर टू थिंग्स टेक्स प्लेस, बाइंग एंड सेलिंग, राइट? अब बाइंग एंड सेलिंग का मतलब हो गया है कि बिजनेस वो एक्टिविटी जिसमें कुछ आप बेच रहे हो या कुछ आप खरीद रहे हो. अब यहाँ पे बेचने और खरीदने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं, just monetary things are involved. It can be your ideas, your thoughts. If I'm trying to sell myself to somebody, for example, if I'm sitting in an interview hall, मैं एक इंटरव्यू हॉल में बैठा हूं, वहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं वहां पे अपने आप को बेच रहा हूं. मैं चाह रहा हूं कि जो पर्सन है, the person with whom I'm having this interaction with, the person is accepting me, he or she is taking me as a person, listening to me and wholeheartedly accepting me. So in that sense, what I'm trying to do, I'm trying to sell myself, and the other person, if he or she at all, वो मुझे accept कर रहा है as a person, मेरे thoughts को accept कर रहा है, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो सुन रहा है, अगर वो कर रहा है, उसका मादा रखता है, यानी कि he or she is buying that thing. So selling and buying, going beyond the monetary terms, going beyond the पैसे का लेन देन के अलावा भी बाइंग एंड सेलिंग होती है. और वो बिजनेस जो है वो यही एक्टिविटी से मिलकर बनता है, जिसमें कि somebody is trying to sell something, somebody is trying to convey something, somebody is trying to accept it wholeheartedly. So buying and selling is business. Now if you can look at this slide, अगर ये स्लाइड आप देख पा रहे हो तो इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं. Can you please in one word tell me what exactly is happening here? Just look at the slide and tell me within seconds कि आपको क्या दिख रहा है इसमें. आप चैट रूम में, आप चैट में आप उसको लिख सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं. What exactly are you finding here? Okay. Sharing and communicating, group communication, exactly, yes. So communication is happening here, and communication is nothing but sharing. जैसे somebody has rightly mentioned, communication is all about sharing. It's not a one-way dialogue. मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, और मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ. I'm not listening to other party. I'm not giving my ears to the other person. I'm just giving my own things to, because एक फितरत है, इंसानी फितरत, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें सुनाना चाहते हैं, दूसरों की सुनना नहीं चाहते. सो यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो मेन जो उसका जो डेफिनेशन है, विच आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट दोस टेक्निकलिटीज. कम्युनिकेशन का मतलब हो गया है कि देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स. इन सब चीजों का जब आदान प्रदान, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी कहो, इफ दैट थिंग इज हैपनिंग, communication is happening. Now अब स्टार्ट कैसे होता है, एक इंसान जो है वो कैसे अपने आप को डेवलप करता है, हाउ ही गेट्स इनटू द कम्युनिकेशन प्रोसेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. इस स्लाइड पे आप देख सकते हो, ये स्लाइड हमें बता रहा है कि जब एक इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, और अपने घर में वो किस तरीके से कम्युनिकेशन के प्रोसेस को वो फील करता है, देखता है. As you can see, there are three pictures. One picture is on the right side. You can see
there is a little girl having a talk with his maybe father or a guardian. Okay? And other picture you can see there's a small kid and the lady, चाहे उसकी मम्मी हो सकती है या उसकी कोई गार्डियन हो सकती है, वो बैठ के coming down to the person's level, वो आके कुछ समझाने की कोशिश कर रही है using the finger, right? और एक तीसरे फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे one small kid is just holding his head and the other person is trying to, you can see with his the feeling which is having in his eyes, he is trying to counsel or trying to tell something, trying to ask something. So ये तीनों काम जो हो रहे हैं एक बच्चे के साथ घर परिवार में when we are small, when we are kids, तो चाहे कोई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है, पापा हैं या अंकल हैं वो कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मम्मी है या आंटी है वो कुछ पूछ के समझाने की कोशिश कर रही हैं, और एक तीसरे फोटोग्राफ में एक गार्डियन है या पेरेंट है वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे से कि क्या हुआ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज हैपनिंग विद यू एंड थिंग्स लाइक दैट. So these things are part and parcel of communication which takes place inside our homes and when we are kids. Moving to the next slide. Okay, अब घर का जो था माहौल ये थोड़ा अब बदल गया है. बच्चा जो है उसने पढ़ाई कर ली है, अब वो अपने शहर से बाहर जा रहा है और शायद वो दूसरे कॉलेज में जा रहा है, दूसरे जॉब में जा रहा है, वहां उसका सर्कल चेंज हो रहा है. The kid has grown, he has got friends. Now again the same things come, right? He needs to get accepted in his new group. He needs to get validated by the new circle which is forming. तो अब वो धीरे धीरे he has to put his position in such a manner that he's accepted by his peers, by his colleagues, चाहे वो friends हो चाहे दोस्त हो. अब वो कॉलेज गया, चाहे उसने पढ़ाई शुरू की, चाहे वो किसी स्कूल में गया, अब उसका वो क्या है, सर्कल इज चेंजिंग. अब वो एक शुरू में बचपन में बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सिक्योर माहौल में था, अब वो धीरे धीरे वो आगे जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, एंड अगेन कम्युनिकेशन इज कमिंग इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वे टू हिम, राइट? सो अब उसे जरूरत है अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाने की, ताकि वो हैप्पीली अपना एक सर्कल क्रिएट कर सके, ऐसे लोग के साथ हो सके जो उन्हें समझ सके, जो उन्हें बता सके, जो उनको पूछ सके, जो उनको they are able to listen to them, they are able to share things with them. And then finally जब कॉलेज खत्म हो जाता है, when the college is done, पढ़ाई हो जाती है, then the kid has grown up into a fine gentleman or a lady. अब वो जाके जॉब में जाता है. अब जॉब में जाने के बाद उसकी दिनचर्या जो होती है शुरू हो जाती है, right from the morning. एक बंदा जो है वो अपनी जॉब कैसे करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क अस, तो हम लोग का काम क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल द मोमेंट वी एंटर आवर वर्क स्टेशन, हम अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, अपने टेबल पे बैठते हैं, लैपटॉप हमारा खुल जाता है, उसके बाद हम लोग वहां पे वी ट्राई टू स्कैन दी ईमेल्स, चाहे हम अपने सारे रिपोर्ट्स देखते हैं, हमने फाइल्स खोलते हैं, कुछ चीजें हमसे मांगी गई हैं वो हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसे हम भेजते हैं, मेल्स लिखते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, या हमारे बॉस ने बोला कि चलो लेट्स हैव अ मीटिंग, एक ग्रुप मीटिंग है, एक there's a morning meeting, whatever kind of meeting is there, we are called to the meeting, जहां पर हमें सुनना पड़ता है. We have to be very very attentive when we are listening to the speakers. या हम एक डिस्कशन में बैठे हैं जहां पे एक बोर्ड में we are asked to give our inputs, जहां हमें बोला जा रहा है कि हमें अपना इनपुट देना है. People are asking for our ideas, जो हमें वहां पे अपने आप को अपने आइडियाज को शेयर करना है. तो ये सारी चीजें दिन सुबह से लेकर शाम तक होती रहती हैं. अगेन कम्युनिकेशन प्लेज इट्स वाइटल रोल इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड. एंड देन द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज, फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्राइंग टू से समथिंग टू समबडी, राइट? चाहे मैं एक टीचर हूं, चाहे एक प्रोफेशनल हूं, चाहे मैं एक साधारण सा मैं घर का एक सदस्य हूं और मुझे अपनी बात बतानी है किसी को, तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने अपनी बात बता दी, शेयर कर दिया तो काम खत्म हो गया. Communication has to have this element called feedback. तो हमने एज अ टीचर अपना काम कर दिया, हमने पढ़ा दिया, राइट? लेकिन अगर हमने फीडबैक नहीं लिया, रिस्पॉन्स नहीं लिया कि हमने जो पढ़ाया था बेटा तुम्हें वो समझ में आया कि नहीं आया,
बाबू तुम ये बताओ कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया. हाँ चलो रोहन, मोहन, सोहन, चलो पूजा, यू प्लीज स्टैंड अप एंड स्पीक व्हाट वी हैव लर्न. ठीक है, इसके लिए भी दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन. सो दैट इज अगेन अ स्किल. और यहाँ पे फीडबैक, फीडबैक मांगने के लिए और फीडबैक देने के लिए. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट है जो हाथ खड़ा करता है, बोलता है कि सर आई हैव टू से समथिंग, ये क्वेश्चन जो आपने बताया ये मुझे समझ नहीं आया, इसका कुछ दूसरा एग्जाम्पल आप मुझे समझाओ. देन बोथ द पार्टीज, जो बंदा फीडबैक ले रहा है और जो फीडबैक दे रहा है, बोथ द पार्टीज हैव टू हैव दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द राइट प्लेस. अगर यहाँ पे वो नहीं कम्युनिकेशन को फॉलो करेंगे तो ना सही फीडबैक ले पाएंगे, ना सही अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे, और हम बता नहीं पाएंगे कि क्या हमें सुधार चाहिए. तो चाहे लेना हो चाहे देना हो फीडबैक, कम्युनिकेशन अगेन प्लेज इट्स वेरी वेरी वाइटल रोल. And of course for students and for people who are preparing for the examinations, चाहे वो competitive examination हो, चाहे वो admission के examinations हो, चाहे वो normal classroom के assessments हो. So अगर आप एग्जाम में आप लिख रहे हो, आप देखते हो कि सेम कॉन्सेप्ट है, वो मैंने भी लिखा है, किसी और मेरे फ्रेंड ने लिखा है, मैंने लिखा है, तो वहां पे एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो अलग अलग आते हैं. सम पीपल गेट गुड मार्क्स, दे गेट गुड मार्क्स एंड अदर दे डोंट, राइट. तो वहां पर भी द वे यू आर्टिकुलेट योर वर्ड्स, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि जैसी रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है उसके हिसाब से अगर मैं वर्ड्स को उसी हिसाब से शेप देके अगर मैं लिख पा रहा हूं उस हिसाब से, if I'm presenting my ideas properly in an articulated manner. आर्टिकुलेशन का मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अपने थॉट्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिरो के गिविंग इट अ स्ट्रक्चर, जब हम उसको रखते हैं, पेश करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन कहलाता है, राइट. तो यहां पर भी कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. नाउ कमिंग टू द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन का पर्पस होता है कि पहला है कि परसुएट करना, वेदर वी आर एबल टू कन्विंस समबडी टू टेक सम एक्शन. क्योंकि परसुएशन जहां पे होता है, इट हैज टू एंड with some action. तो चाहे मैं कुछ यहाँ पे कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे मैं कुछ यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू सेल समथिंग, सेल अ प्रोडक्ट, सेल एन आइडिया, एंड द अदर पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू एब्सॉर्ब इट, बाय इट, एक्सेप्ट इट, और उसके बाद टेकिंग सम एक्शन, राइट. तो अगर हम एक्शन किसी से चाहते हैं कि वो ले, देन वी नीड टू परसुएड, राइट. So that is the first objective or first purpose of communication. Other is to inform. I have got few ideas in my mind. I have got few concepts. I need to share it with the world. मैंने कुछ ज्ञान अर्जित किया है और मुझे उससे सबके साथ शेयर करना है. Yes, Eureka, I have found something. I need to tell it to everybody. I need to inform to people, right? So this is the second purpose of communication. तो पहला है persuasion, दूसरा communication, information. Third is to entertain. नाउ एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि ओके, एंटरटेनमेंट का मतलब नॉर्मली जो लोग समझते हैं वो ये होता है कि व्हेन यू गो ऑन द स्टेज एंड यू परफॉर्म टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी. ओके, दैट्स अंडरस्टूड. बट कम्युनिकेशन में एंटरटेनमेंट का मतलब होता है जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो क्या हम एक ऐसा एम्बियंस तैयार कर पा रहे हैं, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर पा रहे हैं कि जो मेरे साथ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, क्या वो बहुत ही सहज का मतलब है क्या वो बहुत कंफर्टेबल हैं, क्या वो हैप्पी हैं टू एक्सेप्ट माय व्यूज, टू एक्सेप्ट मी एज अ पर्सन. अगर ये हम कर पा रहे हैं, चाहे whatever it takes, चाहे वो मेरा कोई भी जरिया हो सकता है, whether I am using humor in my communication. For example, अगर मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं टू अ बोर्ड मीटिंग, यहाँ पर मैं एक पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू ट्रेन एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी, तो वहां पर अगर मैं ह्यूमर यूज कर रहा हूं, मैं कुछ माइल्ड जोक्स यूज कर रहा हूं जो कि वहां का माहौल को खुशनुमा बना दे, ताकि वो मेरी बात को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट करें, मुझे एक्सेप्ट करें एज अ पर्सन, रैपो बिल्डिंग हो मेरी, तो वो एंटरटेनमेंट कहलाता है. तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, जो नॉर्मली ओवरलुक्ड रहता है. So this is also very important to understand. So we need to persuade, we need to inform, and when we need to entertain, communication plays its part.
the purpose again, when you are trying to sell a product, right? So if you are a salesman and you are trying to sell a product to somebody, you need to those skills, you need to have those attitude, right? सिर्फ स्किल से बात नहीं होती, एटीट्यूड से भी बात होती है कि एटीट्यूड आपका कैसा है. So in selling a product, you need to persuade the other party to shell out his money, because पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है किसी से. So if you want to sell something, sell a product or sell a service, चाहे प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो चाहे सर्विस सेल कर रहे हो, you need to get accepted by the other party. ब्रांड, कंपनी का नाम, ये कुछ नहीं होता है. It all boils down to the person who is really implementing the communication. अगर मैं salesman हूं, I am carrying the responsibility of carrying the brand on my shoulder. कोई भी आदमी जो है, when they go out to buy a car, for example, so they get convinced by the salesman, not by the brand. So all the aspects of communication takes its part. Similarly, when you are trying to inform something to somebody, you need to communicate. So basically these are and obviously to entertain. So ये था purpose communication का. Why we communicate? We communicate for three things. First, to persuade, ताकि कोई action लिया जाए आपके बोलने पे. Second, to inform. If you have some information, if you have some awareness of some new ideas, you need to share it with the world. You need to inform. And third is to entertain, to make the environment so friendly, so jovial, so full of energy. There is no, कहीं पर भी वहाँ पे कोई threatening environment ना हो. People are not feeling threatened. They are feeling very light and very happy to accept you as a person and your ideas. So entertainment is the third. Okay, very quickly we'll see what are the different myths and realities of communication. कुछ चीजें हैं जो हम लोग सोचते हैं ना कि how can we a better communicator. कुछ इसमें myths involved हैं. पहला है कि people are born with communication skills. एक ऐसा myth है कि हमें लगता है कि बहुत से लोगों का मानना है कि जो लोग अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो उनका वो बॉर्न टैलेंट होता है, which is again a very very wrong thing. Communication is a trainable skill. Mind you, I'm again telling trainable skill, provided if you have the right willingness, keenness and attitude, it can be trained to anybody, right? So people are not born, people are trained with this vocation, with this skill. Next, एक जो myth है वो ये है कि I am very good at in this particular language, be it English, be it Hindi, whatever language, right? So I can speak that language well. So I'll be a good communicator. I'm qualified to be a good communicator. ऐसा नहीं होता है भाई साहब. Communication follows a process. ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है. उसमें आपको ऑडियंस एनालिसिस करनी पड़ती है, आपको ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए अपने वर्ड्स फ्रेम करने पड़ते हैं, आपको बॉडी लैंग्वेज का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का और जो रिसीवर है उसकी बॉडी लैंग्वेज का, जो आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है. सो इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेज, इट्स फार बियॉन्ड दैट. एक और मिथ है जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि I come from a non-English medium school, I can't be a good, again because I have already talked about that. So it doesn't matter what medium you come from, you can always be trained and you will definitely be a good communicator, provided you have the attitude to learn and you are able to do a little bit of labor, a little bit of hard work, right? So that is what which is required. Otherwise, everything is done. Everything is possible in this vocation of communication. Of course, if I can talk well, I'll be a good communicator. ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी से बातचीत बहुत अच्छा कर ले रहा हूँ यानी कि I'll be a good communicator. ना. अब जैसे ही मैं एक स्टेज पे जाता हूँ, जैसे ही मैं I get to a platform, I have that opportunity to speak to an audience, then then my communication skills are tested. So इसका मतलब ये नहीं कि if बोलते हैं ना कि I'm a very very smooth talker, then I'll be a good communicator. No, communication requires a lot many processes and sub processes. It's learnable, but it's not like if I can talk smart, then I'll be a good communicator. So that is one myth. And of course, knowledge is nothing to do with. Okay, you have to have some knowledge to continue with your conversation. But again, if you know about something, it doesn't make anybody a very good, a natural communicator. A person has to have those skills. Okay. Am I visible? Please, Rekha ma'am, am I visible?
And Yes, am I sir. Yes, sir. audible? You are visible as well as audible. Okay. Please go ahead. Okay, now few interesting facts about communication and public speaking, because few interesting things people like come across. People still joining in. Okay. 75% of people have this thing called glossophobia. Glossophobia is fear of public speaking. ये एक रिसर्च में निकल के आया है कि 75% ऑफ द पीपल, चाहे और उनका जो जेंडर का अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो 75-73 के रेशियो में वो है कि फीमेल 75% एंड 73% मेल जो पॉपुलेशन है वो दे आर रियली दे हैव दिस फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. अमेरिका में एक रिसर्च किया गया था जिसमें कि पब्लिक स्पीकिंग का फियर को, ग्लॉसोफोबिया या पब्लिक स्पीकिंग फियर को सबसे टॉप पे रखा गया था. और आतंकवादियों का जो वो अटैक है, ये टेररिस्ट अटैक है, या फिर दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ रैटल स्नेक्स, ये सारे जो डर थे ये पीछे थे. नंबर 1 वाज द फियर called glossophobia, that is fear of public speaking. So yes, it holds an importance and it is a very important thing which can't be overlooked. Another important trivia, as per Mark Twain, a very famous author and very famous novelist and very famous, he used to write good poems in English. There are 2 types of speakers in the world, either nervous or they are liars. 2 ही तरह के लोग होते हैं स्पीकर जो होते हैं, या तो वो नर्वस होते हैं या तो लायर्स होते हैं. Now this slide will talk about people who have accepted that they had this fear of public speaking, who had glossophobia. बहुतों ने इसमें एडमिट किया है, ओपनली एडमिट किया है, और बहुतों के बारे में सारे मीडिया में सब कुछ है. तो मार्क जकरबर्ग हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, फादर ऑफ द नेशन, Tiger Woods. There are many people who have gone through this struggle, of this turmoil in their lives, when they were fearful of having a public speech. They were fearful of facing the audience, but they had this thing. They had this intention. They had this attitude. They overcame it. Now coming to types of communication. Now I won't be getting into the bookish definitions and things like that. मैं इसको बहुत प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ, बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, just 2 minutes, कोई आपके अभी तक anything to ask, anything to discuss? I'm just going through the chat. Okay. Is there anything you want to ask at this point of time? Just for a minute. Anybody, if there's a question, I'll be taking up right now, and then or we'll be moving ahead. Okay, so I don't see any. Okay, how can we get rid of this fear? A very thank you so much. How communication can improve our body language? Okay, we'll take few things will be taken later. They'll be dealt with. How can we get rid of this fear? Now, talking of glossophobia, there are few things to be taken care of. One is practice, of course, and the other thing is why this glossophobia happens, why any fear for the matter of fact happens. When we face certain kinds of situations, there are those hormonal changes in our neurons. तो इट्स अ ब्रेन एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस. तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में, हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं. ये तो सबको पता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें हमारा दिल धक धक करने लगता है, हार्ट पैल्पिटेशन होती है, हमारे विजन्स ब्लर हो जाते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग इफेक्ट हो जाती है, हमारे फीट ट्रेम्बल करने लग जाते हैं. ये हार्मोन कराते हैं. ठीक है, आप इसमें हार्मोन में कॉर्टिजोल्स हो सकते हैं, एंडोमॉर्फिन, कुछ भी हो सकता है. ये कोई भी जो हार्मोन है ये काम कर सकते हैं. बट ये जो हार्मोन को ट्रिगर करते हैं, ये सिचुएशंस ट्रिगर करते हैं. सिचुएशंस का मतलब हो गया जो डेटा आप लेते हो अपने एनवायरनमेंट से. किसी ने कुछ बोल दिया, किसी का एक वर्ड,
कहीं आपने कुछ देख लिया, कहीं आपने कुछ सुन लिया, कुछ किसी चीज को आपने टेस्ट कर लिया, किसी चीज को आपने फील कर लिया, जैसे ही ये डेटा, सेंसरी डेटा आपके दिमाग में आते हैं तो न्यूरोलॉजिकल आपका एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो उन सारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है जिसका असर आपके बॉडी पे और आपके फिजियोलॉजी एंड योर बिहेवियर पे आता है, राइट? सो यहां पे देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट इज we should be we have to understand that this is a very normal thing, first of all. The other thing is, with practice and with proper management it can be managed. अगर कोई बोलता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग का डर हटा दूंगा या एकदम दूर कर दूंगा, तो इतना आसान नहीं है. पॉसिबल है बट उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, उसमें बहुत सारी एंकरिंग, बहुत सारा एनएलपी के प्रोसेस यूज होते हैं. बट उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है उसको मैनेज करना. एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड राइट फीडबैक. इट कैन बी डेल्ट विद. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. Of course, there are two types of communication. One is verbal communication, the other is non-verbal communication or non-verbal communication. Verbal communication का मतलब हो गया using words. Non-verbal communication का मतलब हो गया when we are not using words, right? And एक थ्योरी है कम्युनिकेशन की जिसको हम लोग डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियन का रूल कहते हैं. डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियन ने एक रूल दिया था कि हमारे वर्ड्स में और हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसका पलड़ा भारी होता है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? व्हेन इट कम्स टू फेस कम्युनिकेशन, जब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उसका जो असर होता है लोगों पर, चाहे वो आप परसुएट कर रहे हो, चाहे आप इन्फॉर्म कर रहे हो, चाहे आप एंटरटेन कर रहे हो किसी को, तो इसका जो असर होता है वो कहां से आता है, राइट? व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ? बॉस, just 7% comes from the spoken words. Mind it. जब हम लोग बात कर रहे हैं, we are trying to persuade, inform, entertain. Just 7% is the impact of the words. Rest 93%, जिसमें कि 38% है वॉइस या टोन का, हमारे वोकल फीचर्स हो गए, हमारी टोनैलिटी हो गई, एंड 55% हो गया हमारा बॉडी लैंग्वेज, राइट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो जब भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें तो सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान ना दें, बल्कि ध्यान दें इफ यू आर अ सेंडर, आप अपना खुद का कम्युनिकेशन, अपना बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा जा रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका टोन कैसा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप किसी आदमी को एसेस कर रहे हो, कोई आपके सामने बैठा हुआ है, तो आप देखो कि वो बंदा जो है उसके वर्ड्स, उसका टोन और उसका जो फिजियोलॉजी है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या उस पे प्रॉपर सिंक है या नहीं. सो वर्ड्स, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया वर्ड्स. टोन मीन्स योर टोनैलिटी. किसी चीज को आप, फॉर एग्जाम्पल यू से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूं, उसमें बोल रहा हूं कि बेटा एक गिलास जरा पानी लाना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेरी बेटी है वो अनसुना कर देती है, बेटा गिलास पानी लाना. तो शी फाइंड्स इट टू बी वेरी वेरी कमांडिंग, वेरी, तो वो नहीं ध्यान नहीं देती है. बट इफ आई से बेटा प्लीज एक गिलास पानी लाना, सेम वर्ड्स बट विद अ डिफरेंट टोनैलिटी, विद डिफरेंट टोन, इफ आई एम यूजिंग इट, उसका इफेक्ट और ही पड़ता है. अगर आप किसी को सॉरी बोलते हो, आप किसी को आप थैंक यू बोलते हो, या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप किसी को आई लव यू भी बोलते हो, तो वहां पे टोन हैज टू बी इन परफेक्ट सिंक विद योर वर्ड्स. अगर आप कुछ बोलते हैं, उसका टोनैलिटी, इट हैज टू बी मैच्ड. कब पिच ऊपर लेके जाना है, नॉर्मली आई एम स्पीकिंग राइट नाउ एट अ हायर पिच, राइट? बट इफ आई एम टॉकिंग इन पर्सन विद अ पर्सन एंड द टॉपिक इज वेरी वेरी ग्रेव, वेरी सीरियस, then I'll be talking something like this. But right now, because I have to talk in a very I have to be charged up, and I have to talk at the peak of my tonal, those bands, then I have to use that pitch. So pitch ka jo that variation hai, that has to be taken proper care of. इससे भी आप समझ सकते हो कि बंदे के दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है. Now I'm again going to give you a very
entertaining, very exciting example of body language. going to give you 3 instances. यहाँ पे 3 आपको पिक्चर्स मिलेंगी. आप मुझे फटाफट ये देख के बता दो कि अगर आप एक मैनेजर हो, अगर आपको एक हायर करना है एक एम्प्लॉय को, आपको यू हैव टू हायर दैट एम्प्लॉय, तो आप किस एम्प्लॉय को हायर करोगे? या अगर आप खुद ही कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप किस जैसा बनने की कोशिश करोगे? जस्ट हैव अ लुक एट दीज 3 पिक्चर्स. पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 3. जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज, किसको आप पसंद करोगे? किसके साथ आप जाना चाहोगे? किसके साथ जाना चाहोगे? सो कैन आई गेट सम आंसर्स? बी. यस, थैंक यू सो मच. यस, एग्जैक्टली बी. सो बी का जो पोस्चर है और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब बिना बोले ही बता दे रहे हैं कि दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन इज ओपन टू डिस्कशन, दिस पर्सन इज he's honest, he is confident, he is bold, and he wants to have this interaction. He is into the moment. लेकिन ए का जो बंदा है, ए का बंदा वो डिफेंसिव हो गया है. He is not looking into the eyes of the person. वो नीचे देख रहा है and he is getting into the defensive mode. और जो सी वाला बंदा है वो डिसइंटरेस्टेड है, उसको मन नहीं है, यार ये कहाँ इंटरव्यू में आ गए, यार ये जॉब मुझे नहीं चाहिए. या अगर आप किसी आदमी से बात कर रहे हो, अरे यार ये क्यों आ गया अभी, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड टू टॉक टू दिस पर्सन. Then you get the vibe, then you get the message, and you do the next step, you take the next step accordingly as per the body language signals. So this is the importance of body language. Next in the same part comes eye contact. Now in eye contact what happens? A very, very important eye contact, this is a element of non-verbal communication. ऑक्यूलिस्ट हम लोग इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, बट आई वोंट बी गेटिंग इनटू दोस टेक्निकलिटीज. एक छोटा सा मैं एग्जांपल मुजाहरा भी पेश करूंगा आपको, एंड आपको करना ये है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग एवरीबॉडी हु इज देयर लिसनिंग टू माय वॉइस, आपको करना है कि मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वो आपको मन ही मन आंसर देने हैं. ठीक है, आपको मन ही मन आंसर देने हैं और आपको ये एक ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो आई मूवमेंट्स हैं, राइट, आई मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं. मैं आपको इसका 3 में डायरेक्शन बता देता हूं कि 3 डायरेक्शन में जाती है हमारी आईज जब भी हम कुछ सोचते हैं या जब कुछ हम दिमाग में चलता है. एक होता है टॉप लेफ्ट, एक होता है टॉप लेफ्ट, एक होता है मिड लेफ्ट, यानी कि टॉप लेफ्ट या डायगोनली ऊपर, मिड लेफ्ट हो गया ये हमारे पैरेलली, और एक होता है एक बॉटम लेफ्ट या डाउन लेफ्ट. ठीक है, एक ऊपर डायगोनली, एक मिडिल और एक नीचे. उसी प्रकार से राइट साइड में भी एक ऊपर, एक मिडिल में और एक नीचे. टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, मिडिल राइट, मिडिल लेफ्ट, बॉटम राइट या डाउन राइट, डाउन लेफ्ट. ठीक है, तो अभी जो मैं एक आध क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप उन क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ मन ही मन आंसर देना, और आप ये देखना कि आपके आई मूवमेंट्स हैं वो किधर जा रहे हैं, और मुझे वो आंसर आप चैट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपने क्या, आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा. रेडी? सो फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू यू इज, okay, first question is, all of you remember the color of the gate of your childhood house. आप अपने चाइल्डहुड के घर में, आपने जिस घर में आपका बचपन बीता है, उसका गेट का या उसके दरवाजे का कलर क्या था? आप इसका आंसर दो, खुद ही को आंसर दो, लेकिन आप देखो कि आपके मूवमेंट्स किधर जा रहे हैं. आपके घर के दरवाजे का रंग क्या था? ठीक है, आप चैट में आप उसको लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी मैम. दे आर राइटिंग सर. टॉप लेफ्ट, टॉप राइट. ओके, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल थे या कोई भी टीचर जो आपका फेवरेट था, उसकी आवाज कैसी थी? वो कैसा साउंड करते थे? आपके स्कूल के प्रिंसिपल की या आपके फेवरेट टीचर की आवाज कैसी थी? वो कैसा साउंड करते थे? ठीक है, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने फोन नंबर को बोलो.
अपने फोन नंबर को बोलो। मनी मन अपना फोन नंबर बताओ। चलो सब लोग अपना फोन नंबर बताओ मनी मन। इजी है, इजी है, इजी बता दिया, ठीक है। अभी अपने फोन नंबर को उल्टा बताओ मनी मन। चलो उल्टा बताओ, अपने फोन बताओ और ऑब्जर्व करो कि आपकी आंख का मूवमेंट किधर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। अभी आप इमेजिन करो कि आप इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। यू हैव बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड आप तुरंत इंस्टेंटली आप क्या क्या चीजें करोगे। आप प्राइम मिनिस्टर बन गए कंट्री के, आपको तुरंत व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू विल बी टेकिंग राइट नाउ राइट हियर। बताओ, दिमाग से बताओ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। मान लो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, मेरी आवाज ठीक ठाक है मोटा मोटी। अगर मेरी आवाज डोनाल्ड डक को, अगर आपने देखा होगा, इफ यू हैव वॉच दिस वीडियोस, दिस कार्टून, बचपन में अगर डोनाल्ड डक या कोई कार्टून कैरेक्टर आपको याद आता होगा, डोनाल्ड डक हो गया, मिकी माउस हो गया। अगर मेरी आवाज मिकी माउस जैसी हो जाए और अगर मैं आगे का जो प्रेजेंटेशन है, इसका आगे का जो वेबिनार है वो मैं मिकी माउस की आवाज में बोलूंगा तो कैसा लगूंगा। मेरी आवाज मिकी माउस की बन चुकी है और आगे का जो भी सेमिनार अभी होने वाला है, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डील करने वाला हूं, वो मिकी माउस या मैं एक किसी जानवर की आवाज में अगर मैं बोलूंगा तो कैसा लगूंगा। जो भी ऑब्जर्वेशन आपको आ रहा है, यू कैन राइट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन। इमेजिन दैट यू आर इन योर फेवरेट हॉलिडे स्पॉट। आपका जो भी फेवरेट हॉलिडे स्पॉट है, आप उसको सोचो और आप इमेजिन करो कि वो फेवरेट हॉलिडे स्पॉट जहां पर आप पहुंचना चाहते थे, आपकी वो दिली ख्वाहिश थी, बचपन से ख्वाहिश थी कि ये जगह मैं जाऊंगा कभी एक दिन, आप वहां पे पहुंच चुके हो। और अगर वो एक सी शोर है, एक बीच वाला एरिया है, तो वहां के बीचेस में आप हो और जिस तरीके की वहां पर हवा है, जिस तरह की वहां की साउंड है, जो आपको वहां पे फील हो रहा है, आप उसको थोड़ा इमेजिन करो कि अगर आपका फेवरेट हिल स्टेशन है, फेवरेट आपका जो बीच रिजॉर्ट है या बीच प्लेस है, आप पहुंच चुके हो वहां पे, एंड व्हाट इज योर फीलिंग राइट नाउ। जस्ट गेट दैट फीलिंग इनसाइड योर हार्ट एंड टॉक अबाउट इट एंड observe your eye movement and write it in the chat box. Ma'am, are we getting some responses? Yes, sir. Top right, middle left. Still they are answering the previous question. Okay. Very quickly, I'll be moving ahead. Right. Okay. Please tell me what is the time. सब लोग अपना टाइम देखना जरा अपना घड़ी में। आप लोग सब लोग अपना अपना टाइम देखो। अभी घड़ी का टाइम क्या हो गया? मैं भी देख रहा हूँ। ओके, 12:15 ना? 12:15 हुआ ना मैम? 12:13. Okay, so what I did, I gave you all these, I basically I was trying to play with your mind and then I brought you back. I brought you to the neutral state. हम लोग अभी न्यूट्रल, आप शायद आप कश्मीर पहुंच चुके होंगे या स्विट्जरलैंड पहुंच चुके होंगे, मैं आपको वापस लाने के लिए, that was a trick, that was something I needed to bring you back to the neutral position. Now back, coming to this slide and coming to the session. Okay, now why eye contact is so important. इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैंने करवाया था, इसके पीछे क्या मोटिव होता है। ये होता है कि जब आप कुछ चीजों को आप मेमोरी से लेके आते हो, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 10th में आपके मार्क्स कितने मिले थे, राइट? और आपको पता है कि मैं 60% मैंने लाया था, तो आपका जो आई मूवमेंट होगा नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो टॉप लेफ्ट जाता है। यानी कि अगर आप मेमोरी में जाके कोई चीज इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट विल गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टॉप लेफ्ट। वही अगर आप मान लो कि आप कुछ झूठ बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू हॉल और आपको बोला जा रहा है कि आपने अपना इंटर्नशिप में कितने गोल अचीव किए, कितने आपने यूनिट सेल की, हाउ मच यू हैव कंट्रीब्यूटेड,
और आप तो प्रिपेयर कर लिए हो कि ये बोल देंगे, ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, जॉब चाहिए मुझे, तब वहां पे जो इंटरव्यूअर होगा वो ध्यान से आपकी आई कांटेक्ट चेक करेगा कि बंदे की आई कांटेक्ट यानी बंदे का आई जो है मूवमेंट किधर जा रहा है। अगर वो टॉप राइट जा रहा है, इसका मतलब वो समझ लेगा कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फ्रेम समथिंग, create something which was not present before, but the person is trying to create something, right? तो उसी प्रकार से जब साउंड की बात आती है तो हम लोग मिडिल में जाते हैं, जब कुछ फीलिंग की बात आती है, जैसे मैंने बोला कि लास्ट क्वेश्चन जो था, तो वो आपका बॉटम राइट जाता है, और जब कुछ आप एनालिटिकली सोचते हो या आप सेल्फ टॉक करते हो तो बॉटम लेफ्ट जाता है। तो ये सारी चीजें हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट में, आई कॉन्टैक्ट के पार्ट में। वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ इट, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ इट, and we should be aware of these things, right? अगर हम कर लें, ये सीख लें, then it will be very easy for us to crack those interviews, persuade well, communicate well, talk well, and make ourselves acceptable in front of the other party. Okay. But there are different barriers here when we are talking, when we are having a communication, ऐसा इतना आसान नहीं होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स का नाम होता है कम्युनिकेशन में बैरियर्स। अब ये बैरियर्स जो है ये प्रॉब्लम लेके आती हैं, और प्रॉब्लम आती है, क्या होता है उससे होता ये है कि हम सही से अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दूसरों को सुन नहीं पाते हैं। लॉट मेनी थिंग्स गोज इनसाइड दिस। अभी टेक्निकलिटीज में वी वोंट बी गोइंग, पर इतना समझ लें कि बैरियर्स का ख्याल रखना, बैरियर्स के लिए अवेयर होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैरियर्स क्यों होते हैं कि जब डिफरेंसेस होते हैं, राइट? अभी आपका मूड अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल आप बहुत गुस्से में बैठे हो, अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हो, एंड आई एम ट्राइंग टू टीच यू कम्युनिकेशन। आप समझ आपको तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं आएगी, आप बैठे जरूर हो बिकॉज बॉस ने बोला है, बट आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आएगी, आप मुझे इतना सुनोगे, यू वोंट बी लिसनिंग टू मी, यू वोंट बी गेटिंग एनी कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल टू यू। सो मीन्स यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाएंगे, राइट? सो ये साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी बैरियर्स लाते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन का पूरा मटिया मेट हो जाता है। कम्युनिकेशन इज लाइक इट गेट्स डिस्ट्रॉयड एट एनी लेवल। अब ये बैरियर्स हर जगह हो सकते हैं बॉस, बैरियर्स एट आवर होम्स, विद फ्रेंड्स, व्हेन वी आर किड्स, इन फैमिलीज, इन फ्रेंडशिप्स, राइट? सो व्हेन डिफरेंसेस हैं तो वहां पे बैरियर्स हैं तो कम्युनिकेशन नहीं है, communication नहीं है, so then life becomes difficult. ऑफिस में we are not able to express ourselves. बॉस जो है वो एकदम चढ़ बैठा है, and he is like he is expecting something from me. I'm not able to deliver, and I'm getting those anxiety and nervousness आ रही दिमाग में, बहुत anxious हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, we're not able to perform well, demotivated and things like that. So barriers. चाहे we are asked to do a public speaking, अगर बोला जा रहा कि बॉस ओके नाउ दिस इज योर चांस, यू हैव टू गेट ऑन द स्टेज, होल्ड द माइक एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, और फिर यू गेट दोस जिटर्स एंड यू गेट दोस सारा का सारा ऑल दोस हार्मोन्स आर प्लेइंग देयर रोल्स इनसाइड योर ब्रेन, एंड उसका असर आपके फिजियोलॉजी पे आ रहा है, हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ जा रही है, आईज साइड ब्लर हो जा रही है, आपकी ब्रीदिंग जो है शैलो ब्रीदिंग हो जा रही है। नॉर्मली अगर आप कॉन्फिडेंट हो, रिलैक्स हो, तो आपकी डीप ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग फ्रॉम द डायफ्राम। लेकिन अगर आप you're अंडर कॉन्फिडेंट, नर्वस, तो आपकी शैलो ब्रीदिंग, आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो अपर कैविटी से होती है, चेस्ट से होती है। तो ये सारी चीजें चेंज, आपके स्किन का कलर चेंज होने लगता है, आपके पसीने आने लग जाते हैं, थिंग्स लाइक दिस हैपन, सारा का सारा हार्मोनल चेंजेस बिकॉज दे गेट ट्रिगर्ड। बैरियर्स, राइट? इंटरव्यूज, अगर इंटरव्यूज में बैठे हैं तो इंटरव्यू में I'm not very sure that you are able to see the picture or not. Again, interviews में barriers हैं कि we are not able to express ourselves, we are not able to sell ourselves properly. हम अपने आप को बता नहीं पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, और फिर मिसमैच हो रहा है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से I'm not able to take the hire, or if I'm a candidate, I'm not able to sell myself, my ideas. So it's a loss scenario. But the good news, यहाँ पे good news ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन इज समथिंग व्हिच कैन बी लर्न बाय एवरीबॉडी, एनीबॉडी. इट कैन बी दिस स्किल कैन बी गेन्ड विद अ प्रॉपर, बस थोड़ा सा एटीट्यूड चाहिए, राइट एटीट्यूड एंड कीननेस. जस्ट मुझे सीखना है, ये अगर समझ में आ जाए, वी कैन बी वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, राइट?
uh, coming to what exactly we do, right? So in Amity, we put a lot of emphasis on the program called mentorship program, right? So we give very high importance to the mentorship thing. When mentorship is somebody who's experienced in a field. For example, if the person is a teacher or a trainer, and if there's a student or a junior, anybody, so this becomes very important. Ab ye, we do it in our university, but this can be replicated in every sphere of life. अगर हम चाहते हैं कि कोई बंदा जो है जो who is not very comfortable with his life, with his work, so we have to play the part of that big brother or the father figure or somebody who is like who is keen to help the other person. So यहाँ पे एक वो I want to just pinpoint this issue, the keenness to help others. If we have this thing in our heart, in our soul, then definitely the other party will be benefited, and in the same manner, in the process, we'll be benefited when we are reaching out to the person who needs us, who needs our not just material things, but also sometimes just by listening to us, just by just giving the space to share things. Mentor-mentee is a very, very unique this thing because if there's a mentor, there is a guide, there's a person who is there, who is looking after us, then it becomes so easy for us to develop and groom ourselves. Because सबसे मुश्किल काम क्या होता है मैं बता रहा हूँ. सबसे मुश्किल काम होता है वो environment देना, वो एक ऐसा ambience देना जिसमें कि लोग डरे नहीं, threatened feel ना कर सकें. अगर वो माहौल हम दे पा रहे हैं अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने घर में, कहीं पर भी जहाँ पे डर नहीं है, जहाँ पे people are not very closed, तो वहाँ पे things becomes very easy. And obviously we become confident public speakers when it comes to when we are developed in that sense. We become good in all these spheres, including confident public speaking. And obviously confident interviewees, right? So अगर ये सारी चीजें follow करेंगे, so interviews बहुत आसानी से निकल जाते हैं. And people who are comfortable, who are flexible, who have been trained, who talk with others, who get feedback, they are the person who can easily crack those interviews. And excellent presenters. And finally, we get better in not just professional space, but also in our personal spheres. A few things that we are doing in those same lines at our place, as you can see in the slides, that group activities and many feedback giving process. हम लोग feedback कैसे देते हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो, कहीं पर भी हो, whosoever is listening to this. Feedback is very important in communication, right? So feedback चाहे कैसे दे रहे हो. My personal style is to capture it on video and then to the person. This is how we do group work and group discussions and all. So basically, it's all about practice. Somebody asked me how to develop our skills. So it's all practice with one person who can be your mentor, with one person who can help you, giving proper and timely feedbacks. Non-verbal communication is very important, so we do all those things. CV making, a lot of this is one critical area which has to be taken care of. So we do the intense training on CV and resume preparation, and we have got a dedicated English lab wherein students who are not so comfortable in because of their backgrounds. So there's a proper ambience given to them with proper software and labs to practice their skills, and it's a very fruitful activity that we conduct. Students are also given corporate exposures. ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट हैं सिर्फ पढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हमारे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉर्पोरेट इंटरेक्शंस, ताकि उनको रियल लाइफ कॉर्पोरेट एक्चुअली में जो लाइफ क्या होती है जॉब की या कॉर्पोरेट की, they see on a personal basis. And it is very beneficial actually when you are between those people who are actually working in the offices, in the जो उनका toil है day to day का. So with this we end my part of the session. Now it gets the ball is in the court of the participants, and if question comes, if you want to ask
some questions, you can always use the chat box. You can chat it. Rekha ma'am will be Yes, very interactive, sir. Very interactive, very informative session. Thank you so much, I'm ma'am. sure student present here or the audience present here will have a lot to take away from your session. Yeah, let's. I request the audience as well as student, if you're having any question, any points coming to your mind, please you can ask through chat box. Please put your question in chat box. Any question? But I'm having one question, Kunal sir. If you permit, shall I ask? Kunal sir, am I audible? Yeah. I'm having one question. Please, ma'am. Does communication play any role in personality enhancement? Yeah, of course, ma'am. Look, communication is just a tool, actually, right? जिसकी मदद से आप express करते हैं अपने आप को. So personality is something very intrinsic. Of course, हम लोग जब डिटेल में बताते हैं तो पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं कि पर्सनालिटी में हम अपने इंटरनल जो हमारा जो क्वालिटीज हैं और हम जो बाहर से दिखते हैं उसका सम अप करके जो इमेज बनता है, दैट इज पर्सनालिटी, जो ये हम लोग क्लासरूम में बताते हैं. बट आई विल टेल यू, हमारी जो भी पर्सनालिटी है, जो हम अंदर से हैं, फॉर एग्जाम्पल और आई अप्रिशिएट समथिंग, तो उसका मतलब बनता नहीं. अगर मैं किसी को पसंद कर रहा हूं या किसी को मैं लाइक कर रहा हूं या कुछ मैं समझ रहा हूं क्लास में, या मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, किसी के लिए कुछ फील कर रहा हूं, उसका कोई मतलब बनता नहीं है. मैं अंदर से कितना भी कॉन्फिडेंट हूं मैं कर पाऊं. तो जब बात ये एक्सप्रेस करने की, बिकॉज जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे फीडबैक नहीं आएगा. तो मैंने जो काम, जो मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो मोटिव है, पूरा नहीं हो पाएगा. उसके लिए जरूरी है देयर हैज टू बी अ टूल, देयर हैज टू बी अ ब्रिज, एंड दैट ब्रिज इज कम्युनिकेशन by using all the methods, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, आई कॉन्टैक्ट हो, बॉडी लैंग्वेज हो, हैंड शेक्स हो, पैट ऑन द बैक हो, आपका टोन हो, आपके वर्ड्स हो. तो ये कम्युनिकेशन का रोल है कि कैसे आपकी पर्सनालिटी को जाहिर करें दूसरों के सामने, अदरवाइज उसका कोई मतलब बनता नहीं. थैंक यू सो मच. I'll be taking few questions from audience side. Yes, can communication skill develop writing skill too? Yes, of course. जैसे आप लोगों को ये पता है कि if you talk of communication skills, they are divided in 4 parts: reading, writing, listening, and speaking, right? So if we are good in one aspect, for example, if I am a good reader, I can read and things like that, right? So that can also be used in my writing also. So if अगर मैं सोच पा रहा हूँ, अगर मैं words को समझ पा रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, if I'm not wrong, was it the same question? अगर मैं बोल पा रहा हूँ, please come again with the question. Ma'am, please question again. Please. Question is communication skill is important for writing skill also? Okay, yeah, of course. Because writing skill is one of the elements of communication, right? So yes. अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको एक ईमेल लिखना है किसी को, ठीक है, अपने बॉस को ईमेल लिखना है, अगर आपको पता नहीं है कि ईमेल को मैं कैसे लिखूं, अगर मुझे कहीं के लिए जॉब अप्लाई करना है, जॉब का एक कवर लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, डालना है, अगर मुझे अच्छे वर्ड्स अच्छे नहीं, जो वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं नहीं जानता हूं, या मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई मतलब बनता नहीं है. तो राइटिंग स्किल्स, यस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोर ओवर, राइटिंग स्किल्स की बात बता दूं कि राइटिंग इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज आप सब चीज भूल सकते हो, बट समथिंग गोज इन राइटिंग. कोई एक मेल चला गया, आपने किसी को एक व्हाट्सएप लिख दिया, दैट कैन बी स्टोर्ड, दैट कैन बी सेव्ड, that can be used against you, that can be used against anybody. So we have to be very very careful when we are writing emails, we are writing WhatsApp messages, we are posting something on Facebook. It is so very important, very critical element of communication. One more question is coming. I think is it more important to be a good listener or a good communicator? I think the student or the audience want to ask, which is more important, to be a good listener or to be a good communicator? खाना ज्यादा जरूरी है कि पानी ज्यादा जरूरी है? मैंने पानी कहिए, बता दो. खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. Yes, it's so many questions are coming and we are having short span of time.
we have to Okay, wrap up the session also. I'll really come to it. Yes, listening is very, 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 very important. Why? Because if I'm a good listener, I'll be able to give the right feedback in the right time. And if I'm not a good listener, I don't play, I can't listen to anybody because I'm already engaged with my own feelings, thoughts. अरे यार उससे मैं क्या बात करूंगा, वो तो ऐसा वैसा है. मेरा एटीट्यूड राइट नहीं है तो मैं लिसन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा, शेयर नहीं कर पाऊंगा, जाहिर नहीं कर पाऊंगा. जब मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो जो मोटिव है कम्युनिकेशन का पूरा नहीं हो पाएगा. ना मैं कुछ बेच पाऊंगा, ना अपने आप को बेच पाऊंगा, ना मैं अपने थॉट्स को बेच पाऊंगा, ना अपने आप को एक्सेप्टेबल बना पाऊंगा, ना मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, ना मुझे सक्सेस मिलेगी, और लाइफ ऐसी हो जाएगी बॉस. सो लिसनिंग स्किल्स इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. One more question. There are so many questions. It won't be possible to take everyone, but of course, wait, sir, let me. Okay. What role? From Nimisha. Nimisha का question है कि what role do facial expression, gestures, and pauses play in communication? Yes. Nimisha, as we have seen that 93% of communication when it takes place face to face, 93% comes from non-verbal aspects. So either you are an interviewer जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, या इफ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, जो आप एज अ कैंडिडेट आप बैठे हुए हो, अगर आप यू आर एबल टू यूज दोस फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली. अगर आप पता है कि आपको आई कांटेक्ट बनानी आती है, आपको अपनी स्माइल मेंटेन करने आती है, आपको पता है कि आपको फिजेट नहीं करना है, आपको मूवमेंट नहीं करना है, आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए, अगर आपको पता है, देन योर इंप्रेशन इज गोइंग टू बी डेफिनेटली, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव. एंड वो जो बंदा आपको देख रहा है वो भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब आपका मिलेगा, और आपका मतलब है कि सक्सेसफुल, आई मीन योर थिंग इज गोइंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट. Yes, it is very important. So the last question, how Amity University Patna is different in enhancing personality of students? Okay. As if you had gone through the slides, a few slides which I showed about what exactly we do at Amity University, the point is, एक ही word बोलूंगा, environment, ambience, ठीक है. आपको बहुत कुछ आप मिल सकता है. You can learn through YouTube and you can learn through any channel. You can learn. आजकल तो ई-मीडिया इतना ज्यादा है, अब आपको पलक झपकती सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है. तो वहां पे बात आती है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई तो आप उस इंफॉर्मेशन का करोगे क्या. आपने कुछ नया कुछ सीख लिया, अब करोगे क्या. करने के लिए यू हैव टू हैव दैट, बोलते हैं ना कि इकोसिस्टम होना चाहिए. अब इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि आपके पास ऐसे मेंटोर्स होने चाहिए आसपास जिनके साथ आप फ्रीली बात कर सको. आपके पास टेक्नोलॉजिकल ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सकें. सो आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट हियर दैट वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ इकोसिस्टम जहां पे ना सिर्फ टीचिंग, ट्रेनिंग, सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, a very very cordial relationship with the mentors, with teachers, with the employees. ये इतना easily किया जाता है हमारे यहाँ, जिसमें कि एक मतलब बहुत natural growth होता है स्टूडेंट का अपने पर्सनालिटी का. So that is the edge that we have, I think. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot. On behalf of Amity School Business, Amity University Patna, I extend a very sincere thanks to our respected Vice Chancellor, Dr. T.R. Venkatesh, sir, my esteemed faculty colleague, for giving their precious time from their respective schedules. And of course, a big thank to Professor Srivastav for accepting our request and sharing valuable insight with the students. And I must thank IT team for their continuous support. Last but not least, thanks to my dear students as well as audience for making this session so interactive. Thank you so much. Have a good day. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir.